students, a very good morning to all of you. We have already started the chapter strategies for enhancement in food production. Means we have the different techniques to improve the food production so as everybody can get the food with the proper nutrition. Okay, taking up the next topic in this chapter, that is the apiculture, or it is called as beekeeping. What is the apiculture or the beekeeping? That is the rearing of honeybees for the production of the honey and the bee wax is called as apiculture. यानी कि bees की rearing करना, that is called as the beekeeping or it is called as the apiculture. क्यों करते हैं apiculture? What is the need for the apiculture? So as we can get the honey and the bee wax, that is the byproduct that we can get from the by rearing the honeybees. Okay, so one by one we will take up all the steps. First of all, when we talk about the honeybee, they are very social and they are the colonial and polymorphic insect. They have a very good social life and they live in the colonies. Okay, and the different type of three different type of insects, or the we can say that the castes are there which we found in a colony. Okay, what are these? These are queen, drones and workers. ठीक है बेटा, क्वीन क्या है? That is a fertile female. Its main function is to lay the eggs. And what is the drone? That is the male. That means that is the play important role for the reproduction. The number of the queen is confined to one in a one colony, and the number of drone, that is also very less. When we talk about the worker, they are the sterile females. Okay, they are sterile female. Now what is the function of the worker? Means they queen and the drone, they are fed by the worker bee. Different type of the worker bees are there, like the scout bees, scavenger bees and the nurse bees. Different type of worker: scout, scavenger and nurse bees. ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंट टाइप की हमारे पास वर्कर बीज होती हैं एंड देयर मेन फंक्शन इज टू मीन्स स्काउट एंड दे कैन if any enemy or want to attack, predator want to attack on the beehive, then they protect that scavenger bee. And they nurse means जो nectar लेकर आने का काम है, that is also the job of the worker bee. They have the lapping and that type of chewing type of the mouth part, and they can bring the nectar from the flowers and help in forming the honey. Okay, now these are the queen, drone and workers. They work together. जैसे क्वीन का मेन फंक्शन हमने क्या कहा, एग ले करना है, और ड्रोन का फर्टिलाइजेशन में करने का रोल है, और जो वर्कर बीज हैं वो इसमें ये सारे काम जो हैं वो वर्कर बी परफॉर्म कर रही है. स्काउट, स्क्वेंजर एंड नर्स बीज, डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर ऑफ these bees. And next is the, when we talk about the means how they communicate, when we talk about the communication. ठीक है बेटा, तो ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए दे हैव सम डांस परफॉर्मेंसेस, दैट इज द राउंड डांस एंड टेल वेगिंग डांस. ठीक है, अगर आपस में इन्होंने कम्युनिकेट करना है तो ये आपने आवाज़ सुनी होगी जब मक्खियों के छत्ते के पास आप कभी गए हो, आपने ऑब्ज़र्व किया हो, तो वहाँ पे एक अलग तरह की मतलब उनके जब विंग्स आपस में बीट करते हैं तो एक अलग सी आवाज़ सुनाई देती है. तो मीन्स एक्चुअली व्हाट इज़ दिस, दैट दे आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर साउंड टू कम्युनिकेट करने के लिए, या जो प्रीडेटर या कोई भी उस पर अटैक करने वाला है उसे डराने के लिए भी उसे वो यूज़ कर रहे हैं. तो राउंड डांस और टेल वेगिंग डांस, राउंड डांस तब करते हैं व्हेन द सोर्स ऑफ फूड इज नियर बाय, एंड व्हेन इट इज सम एट द सम लॉन्ग डिस्टेंस, देन दैट इज कॉल्ड एज द टेल वेगिंग डांस. सो टू टाइप ऑफ डांसेस आर देयर, वन इज राउंड डांस एंड अनदर इज द tail wagging dance. Okay, when we talk about this, then what happens, that eggs are laid by the queen, then they develop into the larva, and then
they develop a cocoon around it and they form the pupa, and then it form the adult. Okay, so these are the different stages: egg, larva, pupa and adult. Okay, so when the eggs develop into the larva in the beginning stage, they all feed on the royal jelly, which is secreted by the hypopharyngeal gland of the worker bees. Okay, so it is fed by the hypopharyngeal gland of the that is the young workers बी रॉयल जेली, यानी कि जो लार्वाज हैं दैट आर फेड ओवर दैट. आफ्टर दैट दे आर गिवन विद द, मतलब पहले जो ये लार्वा है दे आर फेड विद द रॉयल जेली, ऑल द लार्वाज. ठीक है बेटा. फिर विद इन 2-3 days दे आर गिवन द बी ब्रेड. अब ये बी ब्रेड क्या है, जिसके अंदर क्या है, पॉलन है और क्या है, नेक्टर है. ठीक है, लेकिन जिसने क्वीन बनना है वो जो लार्वा होगा दैट विल कंटिन्यूसली फेड फॉर ऑन द रॉयल जेली. उसको कंटिन्यूसली किस पे फीड किया जाएगा, रॉयल जेली पे थ्रू आउट इट्स लार्वल पीरियड. देन इट इज़ टेकन फ्रॉम देयर, वहाँ से लार्वल जो जिसने क्वीन बनना है वहाँ से उसको ले लिया जाएगा एंड देन इट इज़ ग्रोन इन, देन इट इज़ मीन्स शिफ्टेड टू सम क्वीन प्लेस. ओके, उसका एक अलग सी जगह पे उसको क्या किया जाएगा, रियर किया जाएगा क्वीन चैम्बर में. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीशीज ऑफ हनी बी, वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट Apis indica, then we have Apis mellifera, right? Apis, we have one more species, that is the Apis dorsata, I think. Apis dorsata is there, Apis indica is there, dorsata and Apis florea is there. Is it clear? तो ये जो है हमारे पास इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं. एपिस इंडिका दैट इज़ द इंडियन बी. ओके, और डॉर्सेटा है, फ्लोरिया है, ये स्मॉल लिटिल बी है, और वी हैव एपिस मेलिफेरा ऑल्सो, राइट. तो आपको पता चला यहाँ पे कि जो बी है दैट इज़ अ सोशल, कॉलोनियल एंड पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट, बिकॉज इट्स लेड्स अ वेरी गुड सोशल लाइफ एंड इन द कॉलोनीज इट मीन्स, वो अपना जो छत्ता बनाती है वो पूरी छत्ते का मतलब, बिहाइव का मतलब यही है कि दे लिव इन द ग्रुप्स. ओके, एंड पॉलीमॉर्फिक वी हैव द डिफरेंट फॉर्म्स लाइक द, वी हैव द क्वीन, वी हैव द ड्रोन, वी हैव द वर्कर्स, all are performing the different functions have been assigned to them. So this is all about the what is apiculture basically. Now let's have some discussion about the importance of honeybee. Means we have talked about the different species of the apis, that is Apis indica, Apis mellifera, Apis dorsata. Okay, now what is the importance of the honeybee? The first and very important point, that is the honey. यानी कि जो बीज हैं वो हनी हमें देती हैं, और हनी जो है दैट इज़ अ स्वीट इन टेस्ट एंड इट्स अ विस्कस लिक्विड एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन. The reason it's a neutral in nature and it contains the ash, water. When we talk about the chemical composition, it contains some important minerals, vitamins, ash, sugars, water itself. Okay, so and it is very tasty and it is used in the medicinal, that is Ayurvedic medicines. Okay, it can be easily taken and it's very nutritive also because the pollen are also present in the honey. Okay, next is the bee wax. That is bee wax, it is also the product of the secretion of the abdominal gland of the worker bee, and it is commercially, industrially it is very important because it is used to prepare the polish, that is the furniture polish, shoe polish or lotions, cosmetics, or in the, that is the paper, carbon paper and plasters, so many, that is candle making, mold making, so many other things are there where the bee wax can be used, and it is industrially highly significant also, right. Then pollination means nature में आप पढ़ते हो जो bees हैं they are very good pollinators, means they transfer the pollen grain. Actually they go for the pollen grains to eat or to have the nectar. Okay, but during that process they transfer the pollen grain from one flower to the another, so they are the
मेजर सोर्स ऑफ द पॉलिनेशन। यू हैव स्टडीड इन द फर्स्ट यूनिट ऑल्सो कि इंसेक्ट किस तरीके से पॉलिनेशन करते हैं। तो बीज जो हैं उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं। देन वी हैव द मेडिसिनल वैल्यू, यानी कि बीज से हमें उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, क्योंकि जो इसके विनोम मतलब जो इसके स्टिंग से जो क्रिएट होता है दैट इज़ यूज एज एंटी विनोम फॉर द स्नेक बाइट। ओके, सो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़े हैं कि दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हनी बीज। ओके, नाउ लेट्स हैव हाउ दीज आर रियर्ड, यानी कि इन्हें किस तरीके से रियरिंग की जाती है, पाला जाता है। देखो इसके लिए एक इस तरीके का वुडन ब्रॉड चैम्बर है, आप यहाँ देख सकते हैं, और जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सुपर मतलब जो इसकी एक्सटेंशन के लिए एक और चैम्बर है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द वुडन और एनीथिंग एल्स, एंड इट कैन बी stand and it's lying on the this stand, and there is entry and exit is also there। अब इम्पॉर्टेंट बात जो है इसमें कि इसके अंदर इस तरीके से वर्टिकल जो है वैक्स से जो वैक्स कवर्ड जो इम्प्रिंट्स हैं वो इस तरीके से इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, और जो वैक्स है दैट एक्ट एज अ बेस, मीन्स दैट एक्ट एज टू इनिशिएट द कॉलोनी, क्योंकि जो वैक्स के ऊपर ही जो हेक्सागोनल इम्प्रिंट्स थे वैक्स कोटेड, उनके ऊपर ही बीज अपना बीहाइव बनाना स्टार्ट करती है, मल्टीप्लाई करती है, डिवाइड करती है, वहाँ पे नंबर ऑफ बीज इंक्रीज होते हैं, और फिर वो कंटिन्यूसली ये बढ़ता चला जाता है। एंड दे यूज टू गो टू कलेक्ट द नेक्टर, द वर्कर बी आर देयर, एंड क्वीन lay the eggs, drone help in fertilization, and worker bee they do their own function. Now the colony will increase in size. Okay, then when sufficient amount of the honey is collected, then with very precautions these वैक्स इम्प्रिंट्स जो हमारे वो फ्रेम्स थे, वैक्स कोटेड फ्रेम्स थे, वो निकाल लिए जाते हैं, पूरा हैंड्स, आईज, फेस, पूरी बॉडी कवर करके उसको निकाल लिया जाता है वहाँ से, और उसमें से फिर सेंट्रीफ्यूज कर कर जो हनी है वो उसको निकाल लिया जाएगा, प्यूरिफाई कर लिया जाएगा। और जो आपके वैक्स इम्प्रिंट्स हैं दैट आर, ये जो हेक्सागोनल थे, दे आर अगेन यूज टू मेक द कॉलोनीज, वो फ्रेश कॉलोनीज के लिए फिर से यूज़ कर लिए जाएंगे। ठीक है बेटा, और इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये भी आती है कि जो ये कॉलोनीज बनती हैं, ये जो हनी है कलेक्ट हुआ, ये हनी का जो कलर है ये डिपेंड करता है कि हमने ये जो चैम्बर्स हैं या ये कहाँ रखे हुए हैं। अगर डिपेंड है कि किस तरीके के क्रॉप्स के पास जो है ब्रीडिंग हो रही है इनकी, जो ये बीज हैं, ठीक है बेटा, किस तरह के फ्लावर हैं, तो उसका जो टेस्ट है और कलर है हनी का, ये इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। अब एक और भी बात आपके माइंड में आई होगी कि हनी बनता कैसे है। एक्चुअली क्या है, जो बीज हैं दे यूज़ टू गो टू टेक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। ओके, तो जब वो नेक्टर लेती हैं अपने मुंह के अंदर, तो वो उनके हनी सैक में चला जाता है, एंड वेयर द सुक्रोज इज़ कन्वर्टेड इनटू डेक्सट्रोज एंड लेबुलोज बाय द इन्वर्टेज एंजाइम। मतलब जो शुगर है नेक्टर की, सुक्रोज है, दैट विल कन्वर्ट इनटू डेक्सट्रोज एंड लेबुलोज, एंड व्हेन इट रीगर्गिगेट्स, जब वो वापस उसको बाहर करता है, रीगर्गिगेट करता है, देन इट कन्वर्ट इनटू द हनी, एंड देन इट इज़ कलेक्टेड इन द स्पेशलाइज्ड सेल फॉर द फ्यूचर यूज़। ओके, तो इस तरीके से हनी बी की ये जो रोल रहता है हनी बनाने के लिए। ठीक है बेटा, तो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हनी की प्रोडक्शन कैसे होती है। There are several bee eater, wasp, moths are there which are the enemies of the bees, but the human being, they are the worst possible predator, or we can say enemy of the honeybees. And when we talk about the diseases, nosema is one of the disease of the honeybees, that is the nosema disease caused by Nosema apis. Nosema apis, this is caused by this Nosema apis. Okay, so this is all about the apiculture. ये बहुत ही important question है कि what is the apiculture, what are the different species, what is the importance of honey, what is the importance of honey bee, और how these are reared. तो आपको ये थोड़ा ब्रूड चैम्बर की समटाइम लेबलिंग आ जाती है कि क्या है ये ब्रूड चैम्बर, सुपर, एंट्री, एग्जिट, और आपको ये बताना चाहिए कि हनी की प्रोडक्शन होती कैसे है, हाउ एक्चुअली हनी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम the nectar. Is it clear? So this is all about the apiculture. Fishery.
Now, what is the fishery? What is the fish? First of all, these are the cold-blooded aquatic animals, and that belong to the basically Pisces class and the phylum Chordata. And what is the fishery? Basically, that deals with the means catching, selling, processing of the fishes, crustaceans and others, means crabs वगैरह को भी इसमें सी फूड्स को भी लिया जाता है. ठीक है बेटा. तो अब बात आती है कि फिशरीज यानी कि जो फिशेस को ब्रीड करना, ग्रो करना, उन्हें बेचना, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशरी. सबसे पहला तो है फ़िश एज ए फूड. बहुत बड़े पार्ट में एरिया में लोग इसे एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फिश दैट दे आर कंज्यूम्ड एज ए फूड. सेकेंड, द कंट्रोलिंग डिजीजेज. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारी फिशेज ऐसी हैं दे ईट अप द लार्वा ऑफ द सम डिजीज़ कॉजिंग मॉस्किटोज, जैसे दैट मॉस्किटो कॉज द मलेरिया एंड द लार्वा दैट इज़ ईटन अप बाय द फिश गैम्बूसिया. तो गैम्बूसिया ईट अप द लार्वा ऑफ द मॉस्किटो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टू कंट्रोल द डिजीज़. फिर आता है साइंटिफिक वैल्यू. जैसे लंग फिश है, इट हैज़ सम स्पेशलाइज्ड फीचर विच शो द डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट हैज़ इट्स ओन साइंटिफिक वैल्यू. देन एस्थेटिक वैल्यू आपने देखा होगा, इट लुक रियली ब्यूटीफुल. द फिशेज इन एन एक्वेरियम दैट अट्रैक्ट अस, है ना. तो बहुत आप हॉस्पिटल्स में जाओ, स्कूल्स में जाओ, देयर इज़ एन एक्वेरियम that attracts, so it has some aesthetic value, right? Then when we talk about the byproduct, first is the fish oil. आपको पता है कि fish oil की बहुत ज़्यादा importance है. It is used as a medicine in the medicinal purposes. That is the liver, from the liver of the fish the oil is extracted by the different processes. सेकेंड, फिश मैन्योर, मतलब ऑयल निकालने के बाद जो बच गया उसको एज ए मैन्योर यूज़ किया जाता है. देन फिश ग्लू, दैट इज़ अ स्टिकी सब्सटेंस दैट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ सम फिशेस, दैट इज़ कॉल्ड एज द फिश ग्लू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ आइसनग्लास? दैट व्हाट इज़ द आइसनग्लास? दैट इज़ द जिलेटिनियस सब्सटेंस, that is the gelatinous substance obtained from the air bladder of Pisces, this fishes, and isinglass here, gelatinous substance that is obtained from the air bladder of the fish salmon, and it is used in the preparation of cement and in the clarification of the wine and beer. Then we have next, that is the shagreen. The skin of shark and rays have means pointed placoid scale. Placoid scales are there on the skin of the fish and shark, that is used for the means wood polishing, and it is also used to cover the jewelry boxes and the swords. Okay, so this is shagreen. तो आपको पता होना चाहिए shagreen क्या है, isinglass क्या है. These two are very very important, right? तो ये एयर ब्लैडर से लिया गया था. ये कहाँ से? जो स्किन है, प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट, शार्प पॉइंटेड, दैट आर यूज्ड फॉर द वुड पॉलिशिंग. ओके. देन लेदर, द स्किन ऑफ द फिश दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द लेदर. Then in some places, in France I think, the artificial pearls are created by using the scales. Okay, so this is also something very important. Then we have the employment, means obviously जो लोग fish बेचकर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सी शोर्स के ऐसे कॉर्नर्स पे रहते हैं, and they have only, this is the source for the income. उनके रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त सब यहीं से ही होता है. तो that is the basic source for their employment. यही उनकी नौकरी है और यहीं से उन्हें पैसा मिलता है. इनकम दे कैन गेट फ्रॉम हेयर. ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस. इसको आपने लाइटली नहीं लेना, स्पेशली इस पार्ट को, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपने ज़रूर पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, नीट के पेपर के लिए स्पेशली. ठीक है बेटा. फिर आता है, अगर हम बात करते हैं फिशरीज़ की, तो टू टाइप ऑफ फिशरीज इज़ देयर, फ्रेश वाटर फिशरी एंड मैराइन फिशरीज. फ्रेश वाटर फिशरी मीन्स जिसमें फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, जैसे ये है टैंक, पॉन्ड्स एंड रिवर्स, दीज ऑल आर देयर, तो दैट इज़ अ फ्रेश वाटर फिशरी. और मैराइन फिशरी का मतलब है जिसमें मैराइन सीज आर देयर. ओके, तो आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल जरूर पता होने चाहिए कि फ्रेश वाटर फिशरी में कौन सी, जैसे रोहू और कैटला, इजी टू लर्न है आपके लिए.
सालमन, हिल्सा एंड ईल, दे आर फॉर द मेराइन फिशरी। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है नेचुरल ब्रीडिंग, यानी कि हम ब्रीडिंग, हम क्योंकि फिशरी पढ़ रहे हैं तो हम उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड भी कोई बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है नेचुरल ब्रीडिंग। ध्यान से सुनना है बेटा, नेचुरल ब्रीडिंग के अंदर क्या है कि नेचुरल तरीके से जो बांध बनाए जाते हैं, बंस क्रिएट किए जाते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बंद ब्रीडिंग। तो मीन्स नेचुरली दे आर अलाउड टू ब्रीड एंड natural bunds are made low lying areas to collect the rainwater, and it has the exit for the to go away the rainwater after your plan is complete. So this is the natural breeding, means natural way bund breeding it is बनाए जाएंगे bunds so that to rear the या to breed the fishes in the natural condition। ठीक है बेटा, induced breeding में क्या है कि means fishes are induced to breed, जैसे कि the sperms from the fishes and the eggs they are taken and they are allowed to fuse and they are induced. How they are induced? By giving the FSH or LH hormone injections to the fishes it is given, and so that they are induced to breed, to release the egg and the sperm, so the fertilization occur. So that is the induced breeding। अगला मैं आपको कुछ समथिंग इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जब एक से ज़्यादा स्पीशीज़ फिशेज़ की एक साथ स्टॉक कर दी जाती हैं एंड दिस लेड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन मैनी टाइम्स, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे कैटला कैटला, लेबियोरोहिता, वी हैव द कैटला कैटला, लेबियोरोहिता एंड सिरहीना, सिरहीना मृगला, तीन फिशेज हैं, कैटला कैटला, लेबियोरोहिता, सिरहीना मृगला, दे आर कलेक्टिवली स्टॉक्ड इन वन। कैसे? इसमें क्या है, दैट इज़ द टॉप फीडर, दिस इज़ द कॉलम फीडर एंड दिस इज़ द बॉटम फीडर, यानी कि ये इसको डिस्टर्ब नहीं करती, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करती, ये इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती। आर यू गेटिंग? यानी कि एक ही जगह पे आप तीनों को ग्रो कर सकते हैं, तीनों को मतलब दे आर अलाउड टू स्टे देयर for that collectively stocked together. This is called compound fish farming। ये आपने बहुत ध्यान से करना है because it is something different। What is compound fish farming? When more than one kind of fish species they are stocked together, for example Catla catla, Labiorohita and Serena mrigla, these are the species, means they are collectively stocked and they do not interfere with each other, rather one is the top feeder, one is the bottom feeder and one is the column feeder, so they don't interrupt with each other, and with this we can increase the production to many folds, मतलब बहुत ज़्यादा गुना जो इसकी प्रोडक्शन है बेटा वो बढ़ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट फिश फार्मिंग। समझ आया? फिर आता है हमारे पास फिश डिजीजेस। बहुत सारी फिश डिजीजेज आपकी बुक में दी गई हैं, बट यू मस्ट हैव फ्यू ऑफ देम इन योर माइंड, जैसे एब्डोमिनल ड्रॉपसी दैट इज़ ऑफ कार्प्स दैट इज़ कॉज्ड बाय एरोमोनास, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज़। एक और है जो बहुत बार पेपर में आती है, गिल रॉट, यानी कि गिल्स का सड़ जाना, दैट इज़ अ फंगल डिजीज़। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आती है बहुत बार। तो क्या है, फंगल डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय सेप्रोलेजनिया फंगस एंड कॉज द गिल्स रॉटिंग इन केस ऑफ कार्प। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप इन माइंड। ठीक है बेटा? फिर है फिश लाइस एंड फिश लीच, दे आर द एक्टोपैरासाइट एंड ऑब्वियसली वो उसके न्यूट्रिशन को, अगर जो पैरासाइट है दे टेक द नरिशमेंट फ्रॉम द फिश बॉडी, तो उनकी जो एफिशिएंसी उस पर कम होगी, क्योंकि उनका एब्जॉर्ब फूड ये ले लेंगे उनकी बॉडी पे अगर होंगे तो। ठीक है बेटा? तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आर रिलेटेड विद द फिशरी। सो टिल नाउ वी डिड अबाउट द एपीकल्चर इटसेल्फ इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, कि बीज को रियर करना, क्यों, हमें उससे हनी और बी वैक्स मिलता है। सेकेंड मैंने अभी आपको बताया दैट इज़ द फिशरी, और फिशरी के अंदर ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आइसनग्लास, शैगरी एंड फिश ग्लू, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको इन दोनों के दो नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए। और कंपाउंड फिश, कंपोजिट फिश फार्मिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस। एंड सेप्रोलेजनिया वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कॉज द गिल रॉटिंग। ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द fisheries. Now the next important topic, that is the plant breeding.
earlier when we talk about the plant improvement processes, then the traditional traditionally how the cropping was done, the crop production was limited, and some management processes that increased the production. If better management was there, then the production was increased, but again that is to the limited extent. But due to the plant breeding development by the cooperation of the M.S. Swaminathan and Dr. Berlow, these two names are very very important. M.S. Swaminathan and Dr. Berlow, in their collaboration of these two scientists, we have reached to the peak of the green revolution. Means we have achieved the all the success in this field. Means productivity has been increased to the greater extent beyond expectations, and moreover by the plant breeding experiments we got many different type of the varieties of the plant which are disease resistant, they are tolerant to the drought, tolerant to the pest, herbicide resistant crops we have created. They are the cold resistant crops we have created, हायर प्रोडक्शन क्रॉप्स वी हैव क्रिएटेड. तो मतलब प्लांट ब्रीडिंग ने तो सब चेंज कर दिया, क्योंकि अब हमें जो भी डिज़ायर्ड कैरेक्टर चाहिए है वो हमें मिल रहा है बाय द प्लांट ब्रीडिंग से. ओके, सो फर्स्ट लेट मी डिस्कस व्हाट इज़ द प्लांट ब्रीडिंग. व्हाट इज़ द प्लांट ब्रीडिंग? दैट इज़ द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप. जेनेटिक इम्प्रूवमेंट यानी कि आप प्लांट ब्रीडिंग क्यों करते हैं? दैट इज़ द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप इन ऑर्डर टू गेट द डिज़ायर्ड क्रॉप टाइप विच इज़ बेटर suited to the environment, resistant to the diseases or to the environment. Okay, means that is better suited, resistant and have the higher yield. So what is the plant breeding? That is the genetic improvement of the crop by introducing some gene or by having some modifications so as to get the better productivity. हमें ऐसा plant मिले जिसकी productivity अच्छी हो, जो disease resistant हो, जो better suited हो एक particular environment के लिए. Is it clear? So this is the plant breeding and how we have achieved the plant breeding process. So what are the various steps? These are the steps of the plant breeding. So देखो बेटा, जब हम प्लांट ब्रीडिंग करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ द प्लांट ब्रीडिंग? दैट इज़ द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप. तो अब हम अगर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा बनता है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म. यानी कि जर्म प्लाज्म क्या है? ऑल द नंबर ऑफ द एलील्स ऑफ अ जीन फॉर ए पर्टिकुलर करेक्टर विच आर प्रेजेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज द जर्म प्लाज्म. तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हम उससे रिलेटेड जो भी हम करेक्टर स्टडी कर रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जितना भी जर्म प्लाज्म जीन अवेलेबल है, उसके एलील्स अवेलेबल हैं, हम उसे कलेक्ट करेंगे. तो कैसे? यानी कि जो वैरायटीज़ कल्टीवेट की जा रही हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, हम पहले उसको लेंगे. फिर इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं पर उन्हें आजकल कल्टीवेट नहीं किया जा रहा, हम उसे लेंगे. फिर देसी वैरायटीज़ लेंगे जो उनकी लोकल वैरायटीज़ हैं. फिर उनके वाइल्ड एंसेस्टर्स लेंगे जो जहाँ से एक्चुअली दैट क्रॉप हैज़ बीन ओरिजिनेटेड. मीन्स हमने क्या किया? हमने ऑल द जर्म प्लाज्म, ऑल द एलील ऑफ अ जीन दे वी हैव कलेक्टेड. दैट इज़ कॉल्ड एज द जर्म प्लाज्म कलेक्शन. एक एक पॉइंट को आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि ये 5 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहला स्टेप आपको समझ आया? यानी कि आपके पास जितना भी अवेलेबल जर्म प्लाज्म कलेक्ट हो सकता था आपने उसको करा. सेकेंड पॉइंट है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. यानी कि आपने कहा कि एक पर्टिकुलर प्लांट का ये करेक्टर है, टॉल है, तो आपने पहले उसको इवेल्युएट करना है कि वाकई ही जो करेक्टर वो बताया जा रहा है उसके बारे में क्या वाकई ही वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. जैसे राइस के केस में 3 तरह के ग्रेन हैं, लॉन्गर ग्रेन है, इंटरमीडिएट है और शॉर्टर ग्रेन है. तो आप लॉन्गर ग्रेन वाले को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप पहले उसे इवेल्युएट करोगे, उसे ग्रो करके देखोगे कि वाकई ही जो उसके ग्रेन्स हम जब वो सीड ग्रो करता है तो उससे जो हमें ग्रेन्स मिलते हैं क्या वाकई ही वो लॉन्गर ग्रेन्स हैं. तो सेकंड स्टेप है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट. यानी कि आप जितना भी आपके पास अवेलेबिलिटी थी जर्म प्लाज्म की, आपने उसको क्या करा? ग्रो करके देखा, और ताकि आपको इवेल्युएशन हो सके और आप सेलेक्ट कर सके कि मुझे ये वाला करेक्टर चाहिए पर्टिकुलर और मुझे ये वाला करेक्टर चाहिए, क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ना क्रॉप के अंदर. फिर है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन मीन्स व्हेन द 2 डिफरेंट क्रॉप्स आर अलाउड टू ब्रीड.
टू डिफरेंट जीन्स में, हम क्योंकि जीन मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में हमें सेलेक्ट करना है पहले तो कि हम किसको ब्रीड कराना चाहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टेप ऑल्सो। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो सबसे पहले एक वर्ड आता है लाइन। लाइन का मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट हैव द कॉमन डिसेंट, ठीक है। नाउ द पेरेंट्स विच आर यूज्ड मीन्स जो लाइन इंडिविजुअल यूज किए जा रहे हैं दैट आर पेरेंट्स विच आर अलाउड टू ब्रीड। अब क्या है, हो सकता है सिंगल क्रॉस में आपको इंडिविजुअल मिले, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो, या मल्टीपल क्रॉस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो पहला है वो आप इंटरवैराइटल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि सेम वैराइटीज़ की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, डिफरेंट वैराइटीज़ की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, जैसे वीट की डिफरेंट वैराइटीज़ को हाइब्रिडाइज किया गया। इंटरस्पेसिफिक यानी कि इट मे इन्वॉल्व द डिफरेंट स्पीशीज, द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन मे इन्वॉल्व डिफरेंट स्पीशीज, जैसे शुगर केन और राइस के अंदर डिफरेंट वैराइटीज हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द डिफरेंट स्पीशीज, जैसे कि ADT 37 दिस इज अ वैरायटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ओराइजा। ओके, इंटरजेनरिक मतलब डिफरेंट जेनरा से बिलोंग करते हो दोनों, तो दैट इज कॉल्ड इंटरजेनरिक, तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराई जाएगी। अब उसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले अगेन आप पेरेंट्स को सेलेक्ट करोगे कि आप कौन सा करेक्टर चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप दैट इज विद द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट विद द डिजायर्ड ट्रेड्स, यानी आपके पास बहुत सारे करेक्टर्स आपने देख लिए, आपने उसे इवेल्युएट कर लिया, बट नाउ यू हैव टू चूज, यू हैव टू बी स्पेसिफिक दैट दिस करेक्टर आई वांट टू बी इन माय क्रॉप, ओके, आई वांट टू हैव इट, ओके। देन सेल्फिंग, अब हमने जो करेक्टर लिया है, हमने उस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए उसको हमने क्या कराना है, सेल्फिंग करानी है, क्योंकि जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा, हमें होमोजाइगस लाइन मिल जाएगी, यानी कि वो उस करेक्टर के लिए हमें क्या मिलेगा, प्योर ही मिलेगा। इज इट क्लियर? उसमें हमें कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी कि वो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, जैसे टॉल है, लेकिन अगर टॉल है, टॉल तो कैपिटल T स्मॉल t भी हो सकता है, कैपिटल T भी हो सकता है। तो अगर कैपिटल T स्मॉल t को आप सेल्फिंग करोगे, कैपिटल T स्मॉल t, ओके, तो यहाँ पे देखो सेल्फिंग करने के बाद क्या मिला आपको, धीरे धीरे करके क्या आएगा, होमोजाइगस लाइंस आपके पास डेवलप हो जाएंगी, मींस दैट विल बी प्योर फॉर दैट करेक्टर। इज इट क्लियर? समझ आया आपको यहाँ पे? उसके बाद आता है इमेस्क्यूलेशन। इमेस्क्यूलेशन का मतलब है कि आप चाहते हैं कि कंट्रोल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो गई या अनवांटेड पॉलन ग्रेन ने स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दिया तो आपका प्लान फेल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द प्लांट, दैट इज कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन। समझ आई मेरी बात? यानी कि आपने एंथर्स को उस फ्लावर से रिमूव कर दिया एंड स्टिग्मा इज अलाउड टू मैच्योर एंड एंथर्स आर रिमूव दैट कैन बी केप्ट फॉर द लेटर ऑन यूज। ओके, द रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन। फिर है, जब आपने उसे रिमूव कर दिया तो आप उसे इस तरीके से खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोई विंड पॉलिनेशन हो गया तो, कोई इंसेक्ट पॉलिनेशन हो गया तो आपने तो उसके अंदर रिमूव किए ना। तो सेकंड स्टेप है, आप उसे एक बैग से, जैसे टी बैग, जैसे वेरी स्मॉल बैग दैट इज केप्ट ओवर द स्टिग्मा, ओवर द फ्लावर, सो एज टू कवर इट, ठीक है। फिर है टैगिंग। टैगिंग का मतलब है इस तरीके से एक छोटा सा टैग उसके साथ हैंग कर दिया जाएगा बैग के साथ, उसके ऊपर डेट, टाइम और कौन सा ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर किया जा रहा है वो आप उसके ऊपर मेंशन करोगे, वो ज़रूरी है, उसके बिना ये सारा काम इनकम्प्लीट है। तो समझ आया? पहले आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने उसकी होमोजाइगस क्रिएट की, यानी कि प्योर लाइन ली, फिर आपने उसके एंथर्स को रिमूव कर दिया, कवर कर दिया, दैट इज बैगिंग। देन टैगिंग, यानी कि उसके ऊपर एक टैग लगा दिया, शॉर्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख दी। फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, यानी कि स्टीमन्स आपने रिमूव कर दिए थे विच कैन बी यूज फॉर द लेटर ऑन पर्पस। अब आप जो डिज़ायरेबल करेक्टर चाहते हैं, पॉलन ग्रेन, आप उस प्लांट से लेंगे और बैग रिमूव कर कर और उसके ऊपर डस्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। नाउ द मेल एंड द फीमेल दे विल फ्यूज, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दैट विल फ्यूज to form the F1 hybrid and then they can be grown and F2 generation can also be taken
बाय द फर्दर क्रॉसिंग। पर अभी हम F1 की बात कर रहे हैं कि आपने डिजायर्ड जो मेल और फीमेल गैमेट थे वो दे आर अलाउड टू फ्यूज एंड वी विल गेट दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन तक समझ आया। सबसे पहला था जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया, फिर आपने उसे इवेलुएट किया, देन देयर इज द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास आता है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, यानी कि जब मेल और फीमेल आपने डिजायर्ड करेक्टर वाले हाइब्रिडाइज कराए, नाउ यू वांट टू सेलेक्ट कि वेदर द करेक्टर हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन दैट और नॉट। तो अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो नया करेक्टर आने का सवाल नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन होने का कोई वो नहीं है, रिकॉम्बिनेशन का। तो इफ इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप यू विल गेट द प्योर लाइन दैट इज द होमोजाइगस फॉर दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स इफ इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप देन डिजायर्ड करेक्टर विल बी देयर एंड द सिलेक्शन यील्ड द प्लांट दैट आर सुपीरियर एंड बेस्ट वन इज यूज्ड एज द न्यू वैरायटी। ठीक है बेटा, और अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो हमें क्या मिलेगा? दोनों से बेटर हमें प्रोजेनी मिलेगी, तो दैट इज द क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम देम द बेस्ट सूटेड क्रॉप, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर आपने जो डिजायर्ड ट्रेट व्हाट यू वांट टू हैव इन दैट इट विल एक्सप्रेस दैट करेक्टर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में जो बेटर सूटेड, दोनों से ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स देगी, दैट इज कॉल्ड एज द सिलेक्शन कैन बी कंटिन्यूड इन अ फ्यू सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। कई मतलब बार आप उसको बार बार रिपीट करके टेस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास टेस्टिंग, रिलीज, कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर, यानी कि अब आप अपनी क्रॉप को क्रॉस ब्रीड करा चुके हैं, डिजायर्ड करेक्टर एक्सप्रेस हो चुके हैं, बट स्टिल यू वांट टू टेस्ट, मतलब आप उसे इवेलुएट करोगे कि वाकई ही उसके अंदर वो ट्रेट्स हैं। अगर आपने डिजीज रेजिस्टेंट, कोल्ड रेजिस्टेंट या लॉन्गर ग्रेन्स या वट एवर द करेक्टर इट वॉज, वो उसके अंदर है या नहीं। इवेलुएट करने के बाद टेस्टिंग की जाएगी एटलीस्ट फॉर द 3 continuous season they are given to the farmers to grow. Then again and again testing procedures are done to evaluate the actuality of that genetic makeup कि वाकई वो हर बार वैसे ही एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं। Then if it is finally it is considered that yes it's okay now, then it is allowed to multiplied at a faster speed and then it is commercialized। फिर उसे मार्केट में बेच दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा ताकि वो बाकी लोग भी उसको यूज़ कर सकें। होता है ना मार्केट में कोई नई वैरायटी आती है पर उसके अंदर बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, पर हमें पहले उसके बारे में श्योर होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये सारे स्टेप्स थे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। मेन आपको ये जो टेबल मैंने बनाया है एक शॉर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने वो वैरायटीज़ बताई हैं जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, प्लांट ब्रीडिंग से प्रोड्यूस हुई हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, जैसे वीट की कल्याण सोना एंड सोनालिका, राइस में जया एंड रत्ना, एंड शुगर केन की सैकरम बैरबेरी एंड सैकरम ऑफिसिनेरम, एंड मस्टर्ड ब्रेसिका रेपसीड की प्यूसा स्वर्णिम। ज़रूर इस पे क्वेश्चन आता है कि आप हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के बारे में बताओ, सम crops of the different improved varieties, you should tell about the improved varieties of some crops, wheat, rice की कुछ crops के बारे varieties के बारे में बताओ, तो ये आपको आना चाहिए। तो आपको समझ आया व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है जो स्टेप वाइज आपको पूरा डिटेल में इसी तरीके से लिखना है। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट करना। वो आप कैसे करोगे? सबसे पहले जर्म प्लाज्म कलेक्ट करोगे, इवेल्युएशन करोगे, फिर डिजायर्ड करेक्टर्स वालों को ब्रीड कराओगे, उसके अंदर आपके पास इमेस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर आप सुपीरियर वैरायटीज़ को सिलेक्ट करोगे, फिर टेस्टिंग करोगे कि वाकई ही सुपीरियर एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, टेस्टिंग, रिलीज एंड देन देयर इज़ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द crop. Is it clear? So this is all about the plant breeding and some examples of the improved varieties. Is it clear?